करंट डेंसिटी, स्टूडेंट से क्वेश्चन है व्हाट इज करंट डेंसिटी, डिफाइन इट्स यूनिट। आपको याद होगा मैं बार बार बोलता था ना पहले कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी इनटू द एरिया। तो ये हम टर्म उसमें यूज करेंगे जब हम करंट को डॉट प्रोडक्ट में लेके चलेंगे। एक ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि डेंसिटी जब हम बात करते हैं तो वो वॉल्यूम से रिलेट कर लेते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। नहीं, डेंसिटी कई तरह की होती है। मास पर यूनिट लेंथ लीनियर मास डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन यूनिट वॉल्यूम तो होता नहीं, जनरली चार्ज रिजाइड्स एट द फ्री सरफेस। तो ये हम लेंगे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या है, डेफिनेशन पहले लिखिए। करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर, current density of a conductor is the amount of current flowing per unit area of the conductor, area being held perpendicular to the flow of current, area being held perpendicular to the flow of current। जैसे ये मेरा हाथ एरिया है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, ये ले लेते हैं चलो, ये अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J, it is equal to I upon A। I कौन है, where I is what, I is current, A कौन है, एरिया। आप चाहे इसको S में लिख सकते हो, S is what, एरिया। So I is current, S is area। Current density is a scalar quantity। Current density is a what, scalar? No, sorry, it is a vector quantity, I'm sorry। Current density is a vector quantity and its direction is same as that of the directions of the free conventional electrons। Its direction is same as that of the conventional electric current, means the flow of positive charge। I repeat, current density is a vector quantity and its direction is same as that of the directions of the conventional current, that is direction of the positive charge। So what is current density? It is I upon S and its direction is same as that of the direction of the conventional current, that is positive charge। नोट कर लो आप, यस, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी सिस्टम में से DI करंट इज फ्लोइंग, if through a system DI current is flowing, if through a system, say conductor, DI current is flowing, then DI is equal to J dot ds, J dot ds, where J is called the current density, ds is called area vector। So the total current is J dot ds। So the total current is J dot ds, here is S। The total current is what, J dot ds, S is what, surface integral।
राइट और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू J डॉट ds surface integral. So current density is a dot product of current is a dot product of current density into the area vector, and current is a scalar quantity. Current is not a vector quantity. It is very authentic definition that current is a scalar quantity. So units of current density, units of current density, the units of current density is what? It is ampere per meter square. It is ampere per meter square. So this is how we people talk about the current density and all. Please note it down. I'm again, the board is visible to you. Pause करके इसको note कर लो. Well, students, in the previous lecture, the technical person was saying that he's got some vibrations in his system, so maybe low battery indications and all. So वो alternating current में कुछ humming sound होगी, तो मैं उसको एक बार repeat कर देता हूँ. ठीक है, ये तो ओवर हो गया टॉपिक. ये स्टूडेंट्स एक पिछले लेक्चर में लो बैटरी से सिस्टम में हमिंग साउंड आ गई थी, तो वो मैं हमिंग साउंड वाला टॉपिक थोड़ा इसमें कवर कर देता हूँ. ऑल्टरनेटिंग करंट, मैं वाज टेलिंग यू कि ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशंस मैंने उसमें बताया था आपको कि इट वेरीज, मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, सो इट इज समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव. इधर हम करंट लेते हैं और इधर हम टाइम लेते हैं. यू नो स्टूडेंट्स, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसको साइनोसोडियल करंट भी बोलते हैं. मैंने बताया था ना, an electric current is said to be alternating if its magnitude changes with time and polarity. Its magnitude changes with time and polarity also changes with time. Means positive and negative keep on reversing with time. And it is also called sinusoidal current. इसको हम ना I is equal to I naught sin omega t से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट. तो ये पिछले लेक्चर्स में ना इस सिस्टम का बैटरी में लो होके तो एकदम से हमिंग साउंड आ गया था, तो इन्होंने चेक किया होगा, तो इन्होंने बोला सर इसको दोबारा कर दो आप. सो एनीवे, ऑल्टरनेटिंग करंट में जो नेट करंट है वो 0 होता है. ये इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अच्छा, एक कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट जिसको आप बता रहे थे EMU और स्टैट एम्पियर, ये थोड़ा सा एक बार रिलेशन सा बता दो. ठीक है, श्योर. पहले आप इसको नोट कर लो, अगर नहीं किया तो एक बार फिर कर लो. मैं पॉज करता हूं. ये स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट है, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ करंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 Abe ampere. It is also called what? 1 Abe ampere, right? And electrostatic unit of current, electrostatic unit of current. तो in electrostatic unit of current 1 ampere is equal to 3 into, नोट करो आप, 3 into 10 to the power 9 ESU of current. करेक्ट. तो ये एक यूनिट्स हैं. 1 ampere equal to 1/10 EMU of current, that is called Abe ampere. और 1 ampere is equal to 3 into 10 to the power 9 electrostatic unit of current. तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था. लेकिन करंट डेंसिटी तो आपको क्लियर हो ही गया होगा सारे का सारा, राइट.
करंट डेंसिटी में मैंने आपको बताया था कि I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। एक स्टूडेंट और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि जो मैं आपको करवाता हूं ये सिलेबस ओरिएंटेड करवाता हूं, मैं सिलेबस से बाहर नहीं जाता। सिलेबस से बाहर जब मुझे जाना होगा तो मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। और स्टूडेंट जो करंट डेंसिटी वाला टॉपिक है ना, उसमें कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू आई अपॉन एस, दैट इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट। इसको हम आई अपॉन पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, हाउ इज स्टडी गोइंग ऑन? होप गोइंग वेल। मैं कोशिश करता हूं आपको सिंपल वे से सब्जेक्ट को देने की। हम उस चीज को नहीं अच्छा मानते जो हमें समझने में मुश्किल लगे और फिर हम बोलेंगे जी ये बड़ी जबरदस्त है। नहीं, चीज समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के ऊपर मुझे एक बच्चे ने पूछा, सर न्यूमेरिकल्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसएस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। जब तक आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। उसके बाद एओसी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट चलेगा। फिर आता है AOM, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मींस फिर आप में उसमें मैथ्स लगाना है। अब कुछ बच्चे पूछते सर मैथ्स को कैसे भी, तो आपको डेली रिजल्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के, कैलकुलस के, इंटीग्रेशंस के, ठीक है ना। ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। सुबह उठ के ना आप लर्न किया करो ये रिजल्ट सारे, राइट। और एक मैथमेटिकल टूल प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने व्हाई डू वी नीड कैलकुलस बताया, उसको आप रिवाइज करो। और 10+2 स्टूडेंट्स, आपको एक एडवांटेज दूं, अगर आप चाहते हो प्लेलिस्ट +1 में जाके अपनी +1 को रिवाइज कर सकते हो। यस, कम से कम देखो यार, ऐसा है मन तो मारना पड़ता है। अब ये इंटरनेट का एक से मैंने पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट का, तो सर इसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, क्या वो टिकटॉक है, राइट। इतना कुछ हमने, इसको हम इंटरनेट यूजेस बोलेंगे नहीं। इंटरनेट यूजेस में यूट्यूब से आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इंटरनेट एक ब्लेसिंग्स टू अस, राइट। यूज इट प्रॉपरली, यू कैन रॉक। एंड मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पे 99% हर चीज फ्री अवेलेबल होती है। 0.1% है, मेरे हिसाब से वो भी नहीं कोई खरीदता, खरीद लेता तो पछताता है। अरे मैंने देखा है बच्चों ने कोचिंग सेंटर छोड़ दिए जाना, उन्होंने एक फीस भरी दूसरी दी ही नहीं, बोलते यूट्यूब पे हमें ज्यादा अच्छा मिल रहा है। एनीवे, वो आपकी पर्सनल है, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन यूट्यूब को कैसे यूज करना है, एक बड़ा सा टीवी लो और उसको वाईफाई से कनेक्ट करो, उसके सामने टेबल चेयर लगाओ और जहां जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो आप, और उस टीचर से कम्युनिकेट जरूर करो, ठीक है। सो स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यूड इन द कमिंग लेक्चर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम पूरे बेसिक्स करेंगे, थ्योरी पार्ट्स करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पार्ट्स करेंगे, फिर एमसीक्यूज में अलग से जाएंगे, ठीक। थैंक यू, बाय।